انڈرسٹینڈ کیجیے. میسم دامر, الیکٹیوز یا فل مارکس آپ شروع سے دیکھ لیجئے, ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کر لیا ہے. MD-CAT would be a computer-based examination. عادل نصیر صاحب, again word online نہیں ہے, the word is computer-based examination and as per our regulation and act it will be a computer-based examination. رؤف پشتون, چالان فیس کم کریں. چالان فیس is again the purview of the respective colleges. اس میں PMC کا کوئی purview نہیں ہے. The colleges are whether they are public یا private, یہ ان کا ڈومین ہے اور وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. مالکا میرال, ایک دن MD-CAT کنڈکٹ کرنے کے اوپر ڈاکٹر رتابہ نے کافی ڈیٹیل میں اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے. کائنڈلی آپ دوبارہ کچہری کو دیکھیے گا اینڈ انڈرسٹینڈ کریے گا. انوشا نوولانی, آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ایڈمیشنز نہیں دے رہے, کائنڈلی میک شیور, اور یہ آپ ای میل کر دیجیے member.education@pmc.gov.pk کے اوپر کالج کا نام, آپ کا MD-CAT کا رول نمبر, اور یہ بتائیے گا کہ آپ ویکنٹ سیٹ کی میرٹ لسٹ پر آئی ہیں یا آپ آلریڈی ایڈمیٹڈ ہیں, کس بیسس پہ آپ کو ایڈمیشن ڈینائی ہو رہا ہے. اور آج 3 بجے سے پہلے بفور 3 PM آپ کائنڈلی اس پر ای میل کر دیجیے. فیصل خان صاحب, وی نو کہ لائیو چل رہا ہے, کیسے شروع سے دیکھیں, اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جب لائیو سیشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کے سارے کویشچنز جو ہم آلریڈی ریپیٹ پہ ایڈریس کرتے آئے ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. جی, کچہریز ہماری آلریڈی پوسٹڈ ہوتی ہے ہمارے فیس بک کے اوپر. آپ پچھلی کچہریز جو ہماری 3-4 کچہریز ہو بھی چکی ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ سارے کویشچنز آن اینڈ آف اس میں بھی ریپیٹ پہ ہم آنسر کر چکے ہوئے ہیں, تو آپ اس پہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. احمد حسن چٹھا, MD-CAT 2022 سنگل ڈے آلریڈی آنسرڈ. آپ کائنڈلی دوبارہ سے جب یہ لائیو سیشن ختم ہو جائے گا اس کو آپ جا کے دیکھ لیجئے. وکاس احمد, میں ریکویسٹ یہ کر رہی ہوں کہ سنس آپ لوگوں کے پاس کامنٹس ویزیبل ہیں, آپ کوشش کیجئے کہ اگر کسی آپ کے ایک ویور نے آلریڈی وہ کویشچن پوچھا ہوا ہے 2 کامنٹس پہلے ہی, تو آپ پلیز اس کویشچن کو ریپیٹ نہ کیجئے. کوئی ڈفرینٹ کویشچن یا کوئی نیا کویشچن ہے اس کو پلیز کائنڈلی ایڈریس کیجئے. خان کے HSC لسٹ کی ڈیٹ HSC ہی اناؤنس کریں گے. آپ HSC کی آفیشیل ویب سائٹ اور ان کے جو پلیٹ فارمس ہیں اس پہ جا کے دیکھیے, آئی ایم شیور انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈیٹیل پرووائڈ کی ہوگی. میں نے جس طرح پہلے کیا کہ پرسنلی موسٹ لائکلی وہ آج وہ کچھ لسٹیں شیئر کریں گے, لیکن ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز ایک خیبر میڈیکل یونیورسٹی ہے, دوسری بولان یونیورسٹی ہے نا, تو پروبیبلی ادھر سے بھی نوٹیفیکیشن آپ مطلب آپ لوگ آن لائن, میرا خیال ہے بہت سارے ایکٹیو ہیں آن لائن, آپ ہمارے پیج پہ بھی اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں. اسی طرح ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو کنسرننگ دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے پیجز پہ بھی آپ ایکٹیو رہیں اینڈ وہاں بھی نوٹیفیکیشنز چیک کرتے رہیں. آئی ایم شیور وہ لوگ وہاں پر اناؤنس کرتے ہیں. اچھا سر, ایک کویشچن آتا ہے ریلیٹڈ ٹو حافظ قرآن جو ایک ریکویسٹ کرتے ہیں, اور یہ کافی دفعہ ہمیں دوسرے 1-2 پلیٹ فارمس پہ بھی, سٹیزنز پورٹل پر بھی اور دوسرے اس پہ بھی آتے ہیں کہ give justice to حافظ قرآن students by giving them their marks of past حافظ قرآن test please. اس پہ سر اگر آپ تھوڑا. جی, یہ مارکس نہ ہم نے دینے ہیں نہ ہمارے ہیں. یہ مارکس تو وہ پبلک کالجز میں ایڈمیشن کے ٹائم کس چیز کو کتنا ویٹیج دیتے ہیں یہ اس کے اوپر ہوتا ہے. سو یہ پروونشل گورنمنٹس ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ جی انہوں نے حفظ قرآن کے بدلے ایڈمیشن کے لیے میں اتنی ویٹیج دینی ہے. یہ ان کا پریروگیٹو ہے, یہ ان کا ڈیسیجن ہے. سو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان سے پلی کریں. ہم لوگ حفظ قرآن کے مارکس یا کسی قسم کے بھی اور مارکس جن کی ویٹیجز ہیں وہ ہمارا یہ بزنس نہیں ہے. اچھا, طلال محمود صاحب پوچھ رہے ہیں کہ will NEB students be considered for recent vacancies by PMC in 2nd or 3rd year? NEB کے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی کوٹا نہیں ہے. پلیز ریممبر, آپ کو یہ ایک پاتھ وے دیا گیا ہے اور یہ پاتھ وے جو ہے وہ کنڈیشنل ہے. اور میں پھر ایک بات کہہ دوں کہ
MD कैट का इम्तहान होता है, आपने खुद देख लिया कि इट्स द मोस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम। 1,95,000 बच्चों ने दिया, 20,000 को एडमिशन मिली। अगर आप कहीं बाहर जाके एडमिशन ले रहे हैं, आपने वो तमाम सिस्टम बाईपास किया है। अब बाईपास करके आपने FSC में कितने मार्क्स लिए, MD कैट किया नहीं किया, ये सवाल नहीं होता। सो वापसी पे आके आपको एक इक्विवेलेंस का इम्तहान देना है जो सिर्फ इस चीज़ को करता है, सनद देता है कि हाँ जनाब इनके पास इतना नॉलेज है कि ये यहाँ आके इस कॉलेज में दाखिल हो सकते हैं। ये आपको इसकी बेसिस पे कोई एंटाइटलमेंट नहीं है। सीट तलाश करना, सीट की अवेलेबिलिटी लेना, वहाँ एडमिशन सिक्योर करना, ये आपका काम है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इसमें कोई गारंटर नहीं है। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि NEB से सिर्फ PMC से मुराद है कि वो आपको एक सर्टिफाई कर रहा है कि आप यहाँ एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी हम उनको दे रहे हैं। हमने एलिजिबिलिटी दी है और इसमें ये भी हमने क्लैरिफाई कर दें कि अगर आपने 3rd ईयर का एग्जाम दिया है और आप 4th ईयर के लिए एलिजिबल हुए हैं और आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं जहां आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया गया जो कि यहाँ की यूनिवर्सिटी ने 3rd ईयर में वो पढ़ा दिया है, तो आपको कह सकते हैं कि आप वापस आके 3rd ईयर रिपीट करें। ये अरेंजमेंट और ये डिसीजन यूनिवर्सिटी का है जहां आप दाखिला ले रहे हैं। सर एक और क्वेश्चन, शॉर्टकट बना दीजिए। अच्छा जो भी अभी अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, काइंडली जिन स्टूडेंट्स को इशू है रिगार्डिंग कॉलेजेस डिनाइंग देयर एडमिशन, काइंडली आप प्लीज member.education@pmc.gov.pk पर आप कॉलेज का नाम, अपना MD कैट रोल नंबर और अपनी डिटेल्स, और ये जरूर बताएं कि आप ऑलरेडी ओपन मेरिट पे एडमिटेड हैं या फिर आपका जो अभी नाम आया है रीसेंट वेकेंट सीट के मेरिट लिस्ट पर, वो जरूर मेंशन करें कि किन बेसिस पे वो आपको डिनाई कर रहे हैं आज 3 PM से पहले, सो दैट उस पर नेसेसरी एक्शन लिया जा सके। सर एक क्वेश्चन समी सलीम साहब है, वो ये पूछ रहे हैं कि मैम डिसेबल सीट के बारे में आप क्यों बात नहीं कर रही हैं? मतलब मुझे तो कमेंट ही अभी नजर आया Once again, डिसेबल सीट और ये सब कोटास हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने या रेलेवेंट कॉलेजेस ने अपने एडमिशन पॉलिसी के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी होती हैं। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम कॉलेजेस की एडमिशन पॉलिसी नहीं डिक्टेट करते, हम सिर्फ एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि जो स्टूडेंट दाखिल होगा उसके पास MD कैट और FSC में इतने मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। उनका उसके नेक्स्ट बाद- क्वेश्चन यही था कि काइंडली डिसेबल सीट के लिए पासिंग क्राइटेरिया कम कर दें MD कैट का। जी, आप किसी लिहाज से भी आप एक डिसेबल्ड की जो टर्म है, डिसेबल्ड को हम स्पेशल पर्सन कहते हैं कि उनकी बात स्पेशल नीड्स हो सकती हैं जिनको हम रिस्पेक्ट करते हुए हम उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करने पे बिलीव करते हैं कि उनको बराबर का कंपेटिटिव एनवायरनमेंट मिले। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं से भी हम आपको तस्लीम करते हैं कि आप इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड हैं, क्योंकि अगर आप इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड होने की बुनियाद पे कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर आपको डॉक्टर बनाना जो है वो सोसाइटी के लिए के कॉस्ट पे होगा। सो हम बिलीव करते हैं कि आपकी कुछ स्पेशल नीड्स हो सकती हैं बिकॉज ऑफ सर्टन कंडीशंस, लेकिन गिवन एन असिस्टेंस इन दो स्पेशल नीड्स यू कैन actually outperform anyone in the society और आप सोसाइटी को उतना ही अच्छा सर्व कर सकते हैं। So please don't ask for concessions which give an impression कि आप डॉक्टर के तौर पे अपना रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। ऐसा ना, इसमें थोड़ा मैं एक और कैटेगरी, कुछ स्पोर्ट्समैन वगैरह भी होते हैं ना, जी तो सर। जिस तरह हाफिज कुरान वाला आ गया डिफरेंटली, We are not going. प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैज टू अलोकेट, नॉट आवर डोमेन। अच्छा सर, बहुत सारे बच्चे कुछ अभी एकदम रिसेंट से कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं जो कि अपनी स्कॉलरशिप के स्टेटस पे कंफ्यूज्ड है, उनके पास अभी भी अंडर रिव्यू आ रहा है, उस पे अगर आप एक फॉलोअप प्रोवाइड करते हैं। जी, एक्चुअली ये हुआ कि हमारे पास स्कॉलरशिप के लिए फंड लिमिटेड था। ऑफ कोर्स हर चीज़ की एक लिमिट होती है और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो वसाइल रखे थे स्कॉलरशिप के लिए, हमारे पास 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई और नेचुरली उन 10,000 एप्लीकेशंस को एंटरटेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो हमने कुछ क्राइटेरियाज बनाए जिनमें नीट और
साथ साथ उनका एकेडमिक स्कोर थे, और उसकी बेसिस पे हमने अभी तक जो प्रोसेस करके एप्लीकेशन जिनको के हम ऑफर दे चुके हैं और फाइनल करके, वो कोई तकरीबन 580 के करीब हैं जो कि उसकी हैं। अब हमारा मसला ये था कि जिस वक्त हमारे, और इसके थ्रू हम तकरीबन 120 मिलियन से ज़्यादा की ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं। बट रिमेंबर, ये 120 मिलियन इस साल के लिए है। अब उस बच्चे को हम जब कमिट करते हैं तो वो 5 साल की कमिटमेंट है, विच मीन्स कि अगर उसको 5 से भी ज़रब दें तो वो 600 मिलियंस की कमिटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं उन बच्चों के साथ। इसमें कुछ केसेस रिव्यू के लिए इसलिए रुके रहे क्योंकि बच्चों के कॉलेजेस जो हैं वो डिसाइड नहीं हो सकते। तो जब तक कॉलेज का डिसीजन फाइनल ना हो उस वक्त तक हमें फिर जहाँ जिन के फाइनल होते गए उनको हम आगे केसेस को प्रोसेस करते गए, और हमें इस स्टेज पे आके उसको रिव्यू प्रोसेस को रोकना पड़ा, इसलिए कि जब वो ओपन मेरिट और वो सब सीट्स भी आ गई, वेकेंट सीट्स का आ गया, तो हमने कहा कि जी आप रोक के अब वेकेंट सीट्स फिल हो जाएं, उसके बाद हम बाकी एप्लीकेशंस को रिव्यू करके और उसमें से जो हमारे पास कुछ फंड्स बचे हैं उनमें हम मजीद एलोकेशन कर देंगे। सो वी कैन अंडरस्टैंड, बट एक सबको ये है कि जिन लोगों की एप्लीकेशंस आई और उनको हम नहीं दे पाएंगे, उन सब से मैं ऑलरेडी अपोलोजाइज भी करता हूं कि हम उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सके, क्योंकि आप सब के सब जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स लिए आप लेना है ले लें। इंशाल्लाह हम इसीलिए हैं और बैठे हैं और यही काम करेंगे हम। थैंक यू। Thank you so much everyone. मेरे esteemed colleagues, thank you so much for joining for the कचहरी। इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट कचहरी में जब आएंगे तो इस सेशन के जो भी फॉलो अप होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंड अगेन member.education@pmc.gov.pk पे बिफोर 3 PM आप ईमेल कर दीजिए। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमारा वेबसाइट के ऊपर लाइव है, आप वहां पर भी जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है प्लीज स्टडी कर लीजिएगा, सारे डिपार्टमेंट्स और उनकी कैटेगरीज जो भी आ रही हैं उनको देखकर अच्छे तरीके से कंप्लेन कीजिए, ताकि रेलेवेंट अगर आपकी कंप्लेन होगी तो वो अच्छे तरीके से बल्कि जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल। थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप MD कैट सिलेबस के बारे में बार बार पूछ रहे थे, सिलेबस की